अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है होली से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ ओवर 2000 टन्स। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ ओवर 2000 टन्स ऑफ गुलाल आर प्रोड्यूस इन इंडिया फॉर होली बेग पेजेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Yellow is one of the most popular colors thrown during Holi. At this factory in India, hundreds of pounds of this yellow powder called gulal are laid out in the sun to dry. Most of the world's gulal comes from the northern city of Hathras. You just imagine life without colors. Imagine life in black and white. It's so boring. Colors give you pop. Here, Radhakishan Color World produces 2,000 tons of gulal annually. We went inside one of the largest manufacturers to see how it's preparing for its first Holi during the pandemic. कैसे बनता होगा, कैसे तैयार होता होगा? कलर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसकी लिमिट कोई नहीं है, लिमिटलेस है। सही। This is Ratan Bihari Agrawal. He's a bit of a color connoisseur. मुझे लगा रतन आप टाटा। कोई भी कलर पकड़ लीजिए, हरा कलर है, हरे कलर में भी डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पैरट ग्रीन, लीफ ग्रीन। He and his family have run the company for 4 generations. 4 जनरेशन से हमारा व्यापार है, 80 हमारी साल से। मैन्युफैक्चरिंग है, ये करीब 80 साल से हम इस ट्रेड में हैं। In Hathras, Holi powder production brings in more than 30 crore rupees or over $4 million each year. ओके। There are over a dozen gulal making factories in the city alone. At Radhakishan Color World, gulal production hits its stride in November after Diwali, India's largest festival. This massive facility with almost 100 employees has 5 main areas: a room for packaging, one for the handmade processing, plus a command center and storage unit. And a mile away are the gulal drying fields. ओके। The company makes both handmade and machine processed gulal to keep up with demand. The first part of the process always starts with a starch mixture. Corn starch is the base for the color powder. Starch is used instead of common bases like talcum because it's less toxic and much lighter. The starch is hand mixed with water until it's totally blended. The color dye is added next. ओके। Every color tells a story. You know, red stands for love. Like blue is for royalty. Pink is for caring. Yellow happiness. Then the mixture goes through a grinder before it's baked in the sunlight. Well, that's an Okay. important step. The city in Uttar Pradesh is prone to rain and even monsoons, which affects when the gulal is dried. On top of that, the powder production coincides with the region's farming season. Both factors play a role in how much gulal can be produced before Holi. सप्लाई सारी लेट होती थी और काफ़ी सारे 50-60%, 70% ऑर्डर कैंसिल भी हो जाया करते थे। सही। ओह। बारिश आ गई, 4-4 दिन बादल नहीं खुल रहे हैं, लेबर नहीं मिल रही है, खेतों में काम शुरू हो गए। So Ratan and his brother invested in a mechanized gulal making process. प्योर स्टार्च हम यूज करते हैं और दूसरी तरफ से आपको तैयार गुलाल मिलता है। आज की तारीख में हम उसको 24 आवर्स चला रहे हैं। अच्छा। हम एक साल में हम सिर्फ जितने हफ्ते में संडे होते हैं, हम सिर्फ उसका ब्रेकडाउन उसकी ग्रीसिंग के लिए रखते हैं। The company also has an herbal line made with organic dyes. हर साल बहुत ज़ोर से होली खेलते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप लोग होली खेलिए। क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं थोड़ा सा हम सेंसिटिव हो गए, ये हो गया, तो इसके लिए हर्बल गुलाल का भी बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। Ratan also makes toys for Holi that help spread the gulal. There are lot type of gulal extinguishers, double extinguishers, small gulal containers, अच्छा। snow sprays. They make over 260 different gadgets. ये प्रेशर सिलेंडर है हमारा, बड़ा कलर का सिलेंडर रहता है। इसके अंदर ये गुलाल को ग्रामेज चेक करके मैनुअली इसमें फिल करते हैं। क्या बात। प्रेशर का गोज है, इसको इसमें डाला जाता है। ओहो, आग बुझाने के लिए जैसे। ये यहाँ पर लॉक होगा प्रेशर गोज। सही 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 सही। फिर ये सिलेंडर को उस मशीन से प्रेशराइज करा जाता है। देन पाउडर। यहाँ पर इसका
श्रिंकिंग लेबलिंग होता है, उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी होकर Okay. इस तरीके से आता है हमारा। ज़बरदस्त खूबसूरत। इसमें दोनों तरफ अलग अलग कलर रहते हैं, हाफ ऑन हाफ ब्लेंडर है, एक साइड इसमें भी जैसे येलो है, एक साइड इसके अंदर ग्रीन क्या रहेगा। बात, इसमें भी इतनी इन्वेंशन। Another popular toy is the compression gadget. It's filled with gulal and once squeezed releases a fine mist of powder. The Cock brand sells most of its products straight to businesses. But many gadgets like these can be found at the Hathras Color Market. Open year-round, it's one of the largest Holi markets in the world. And Hathras is the Gulal hub because it's close to the Braj region, where Holi celebrations last as long as 2 weeks. कॉन्सर्ट होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, विदेशों में होते हैं बहुत, उनमें बहुत गुलाल का यूज होता है, 12 महीने होता है और इंडिया में भी होता है। और लोग खुशी के माहौल पर जब इलेक्शन जीत जाते हैं तब लोग गुलाल का बहुत यूज करते हैं। बॉलीवुड में भी बहुत हमारा गुलाल बॉलीवुड में तो बहुत जाता है, बहुत सारे क्या उनके बात। सीरियल्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे उनके स्टोरीज़ हैं। The tradition can be traced back to several Hindu legends about Lord Krishna. When Lord Krishna and Radha Rani plays Holi with each other, they show the emotion of love and compassion with each other and in life. Depending on the region, Holi can be a multi-day festival or an afternoon celebration. The first evening is known as Choti Holi or Small Holi and usually involves a symbolic bonfire. The second day is when people of all ages wear white and throw colorful powder at one another. Hindu temples are also decorated with bright colors. Like this one in Vrindavan, known for the world's largest Holi celebrations. वृंदावन। According to the Hindu lunar calendar, Holi generally falls on a full moon between February and March. सही। Last year, Holi fell right before the coronavirus was officially declared a global pandemic. Gulal producers saw sales decline by almost 10%. This year, massive crowds of people are celebrating even as India grapples with another spike. लोगों का बाहर निकलना इस समय बहुत जरूरी था क्योंकि पेंडेमिक में गया पिछला साल, आपको भी पता है, लोग बाग पूरे घरों में बंद घुटे हुए थे, तो भाई फेस्टिवल आया तो लोग बाग निकले हैं घर से बाहर, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना। India reported over 68,000 new coronavirus infections on March 28th, the highest single-day rise recorded so far this year, taking the nationwide tally well over 11 million. So far, 5 Indian states have already banned Holi celebrations. ये कोविड एक ऐसी चीज़ है जिसका इफेक्ट तो ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं मतलब इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड और हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया ही है। और हम तो सीजनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कोविड का हमारे ऊपर असर तो हुआ है। Still, the company has hoped for high returns in 2021. इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी जल्दी जल्दी ख़त्म हो, लोग एंजॉय करें और फेस्टिवल्स मनाएं खूब जोर से शोर से। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं। दुनिया कायम है, हम भी कायम है। गुलाल बहुत आला, बहुत आला। के ज़बरदस्त। आँखों को ठंडक मिली ऐसे कलर्स देखकर। जी जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने वो स्मोक कलर्स जो हैं वो यूज़ होते हुए देखा है वेडिंग वगैरह में, बेसिकली वो यूज़ होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि वो तो हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और मैं देखी हूँ इंडिया में इतने बल्क में बन रहा है, इतना ज़्यादा बन रहा है कि तो हर इंसान, हर तबके का इंसान इसको बाय कर सकता है, परचेज़ कर सकता है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो हर बिज़नेस को कोरोना वायरस ने, उस पैंडमिक ने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। तो यकीनन इनका बिज़नेस तो फिर भी सीजनल है। और कोरोना में सबसे ज़्यादा यही मसला था कि मेल मिलाप आपको नहीं रखना है, ज़्यादा आइसोलेट होना है और ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। तो हॉली तो मैं ये कहूँगी कि एक फेस्टिवल ही ऐसा है कि मिल यकजहती, एक मेल मिलाप का, एक साथ में एंजॉय करने का। जिस दिन ऐसा लगता है हॉली वाले दिन, तो मुझे ऐसा लगता है पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया हो, एक साथ हो गया हो। और
इन्जॉय कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं इसकी जो एक चाको चौबंद थी, इसकी जो एक अट्रैक्शन थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था खो गई है जब से कोरोना आया था 19, 20, 21। तो मुझे लगता है इस बार सारी कसर पूरी होने वाली है। इस बार इतने जोशो खरोश के साथ होली मनाने वाले हैं इंडियंस, सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडियंस। और इंडियंस पाकिस्तान में भी होली सेलिब्रेट होती है, हमने पहले भी जिक्र किया है, पहले भी बात की है। तो इसको बहुत पसंद किया जाता है, हमारे पाकिस्तान में भी इन चीज़ों के, इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जो भैया बिज़नेस कर रहे थे, इन्होंने जो अपने ऑफिस के अंदर बैकग्राउंड पे जो पूरी दुनिया का मैप लगाया हुआ था और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर फैलाए हुए थे पूरी दुनिया में, तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि कलर्स जो हैं ये खूबसूरती, ये अमन, ये खुशी का एक पैगाम होता है। और कलर्स से ही इंसान को अच्छा लगता है, इंसान को अच्छी फीलिंग आती है। अक्सर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि इंडिया में या हिंदू मज़हब में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत ही कलरफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, और अगर थोड़ा सा इंसान 2 से 3 मिनट इनकी डेप्थ को सोचे, इनकी गहराई में जाके सोचे, तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़े मतलब एक चीज़ बिला वजह नहीं है, मतलब अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें तो उसकी आपको खुद ब खुद उसके रीज़न्स, उसके जवाबात मिलेंगे कि यार एक ऐसी चीज़ है कि आपकी नफ़रतें, आपकी फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, आप लोग जुड़ते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं। रक्षाबंधन हो या दिवाली हो या होली हो, तो होली में हम लोग एक दफ़ा वीडियो भी बनाने गए थे, तो मैंने बड़ा अजीब देखा कि आपकी ना जान है ना पहचान है, आप उसको कलर लगा रहे हैं, आप उस पर कलर फेंक रहे हैं और आगे से कह रहे हैं कि क्या बुरा तो ना मनाओ, होली है, बुरा ना मानो होली, बुरा ना मानो। तो मतलब ऐसा है कि आप अनजानों से भी आपकी जान पहचान होती है। और जो मतलब है कि एक ऐसा है ना कि इंसान एक दूसरे से, मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जितनी तरक्की होती जा रही है, जितनी दुनिया एडवांस होती जा रही है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। फिज़िकली लोग एक दूसरे की गपशप या एक दूसरे से बातचीत या एक दूसरे से मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, जितनी तरक्की होती जा रही है। तो आगे और मज़ीद ये चीज़ें हैं। तो आप अगर लॉजिक सोचें हिंदू मज़हब की और इस फेस्टिवल की, तो आपको उन चीज़ों के साथ साथ साल में कई मरतबा ऐसे बहाने, मैं फेस्टिवल को कहूँगा बहाने, कि इंसानों को जोड़ने का एक बहाना है बड़ा खूबसूरत। और फिर कलर की मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कलर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, कलर की अपनी एक ज़बान होती है, कलर बोलते हैं, हर कलर की अपनी एक डेफिनेशन है, हर कलर की अपनी एक तशहीर है। अच्छा, कुछ कलर्स के बारे में उन्होंने कहा भी, जैसे रेड कलर ये पैगाम देता है, येलो कलर खुशी का पैगाम देता है, ब्लू कलर रॉयलिटी का पैगाम देता है। तो मुझे लगता है एक तो लैंग्वेज है, वो बात भी ठीक है, और दूसरा ये कि हर कलर में कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है। हर कलर एक नया पैगाम दे रहा है आपको, जो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कलर के ज़रिए आप बयान कर सकते हो अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने ख़यालात, अपने इमोशंस आप ज़ाहिर कर सकते हो। ये कितनी बड़ी चीज़ है। फिर दूसरी बात मैं ये सोचती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप किसी को अपनी चीज़ पे अपनी तरफ माइल कर लो, राग़िब कर लो, या अपने काम ऐसे करके दिखाओ कि सामने वाला आपकी चीज़ों को, आपके फेस्टिवल्स को, आपके त्योहारों को अडॉप्ट करना शुरू कर दे, आपके ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करे। और मैं ये कहती हूँ ये अपने आप में ही बहुत बड़ी फ़तह है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है। अब मैंने ये देखा कि होली का अगर आप लें तो डिफरेंट कंट्रीज़ में होली खेली जाती है, मनाई जाती है, और जो हिंदू मज़हब से वाबस्ता नहीं हैं जो लोग, वो भी इसे, जो इंडिया से वाबस्ता नहीं है वो लोग भी इसे सेलिब्रेट करते हैं, उसी जोशो खरोश के साथ, उसी इंथ्यूजियाज़म के साथ, उसी वलवले के साथ, उसी खुशी के साथ। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि आपके त्योहारात, आपके फेस्टिवल्स ऐसे हैं, इतना एक अट्रैक्टिव हैं, इतना ज़्यादा अपने आप में ही इतने बड़े हैं कि लोग उसे मनाना पसंद करते हैं, जो उनसे मुंसलिक नहीं है फिर भी मनाना पसंद करते हैं। यकीनन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और होली पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, ये सब मुझे पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अट्रैक्ट करते हैं। ये फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब हम व्लॉग बनाने गए थे तो मतलब लोगों से कमेंट्स ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे होली दिवाली वगैरह पर कभी भी, तो बाकायदा लोग बताते हैं कि मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, वो बात कर रहे होते हैं होली के हवाले से। कई लोग कहते हैं जो होली के फेस्टिवल में मौजूद होते हैं 50% हिंदू नहीं भी होते, लेकिन उसके बावजूद भी वो होली मना रहे होते हैं, होली का फेस्टिवल देखने आते हैं, होली के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। देखें, एक इंसान की नेचर होती है, तो इंसान की नेचर के साथ बड़ा रिलेट कर रहा है ये, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वरना कोई खिंचा हुआ क्यों आता।
इंसान की फितरत के अंदर खुश होना, कलर एक दूसरे पे डालना। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा ज़िंदगी में कि हर इंसान के अंदर भी एक बच्चा होता है, हर इंसान अपनी एक बोर लाइफ, एक रूटीन की लाइफ गुजार रहा होता है, तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं चाहता है कि यार वो मतलब एक तरह से भड़ास निकालना चाहता है, एक तरह से खुश होना चाहता है, एक तरह से खेलना चाहता है हर शख्स। तो एक ऐसा मौका होता है, अब एक आम दिन है, आम दिन में एक शख्स बाहर रोड पे निकल के तो शरारतें नहीं कर सकता ना। अच्छा, होली का एक दिन है कि एक बूढ़ा आदमी भी है 60 साल का, 50 साल का, तो वो भी होली वाले दिन बाहर निकलता है, तो एक दूसरे पे कलर फेंकते हैं। तो मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है या आपके अंदर जो गम होते हैं या परेशानियाँ होती हैं, आप सारी चीज़ों को साइड पे रख देते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप अपने आप को भी साइड पे रख देते हैं, और आपका जो 10 से 12 साल वाला, 15 साल वाला बच्चा था, वो आप उसको निकाल के बाहर ले आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक मेंटली एक क्या कहते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन, इसको भी मैं कहता हूँ कि एक बहुत हद तक ये ख़त्म करता होगा। बहुत सारी थेरेपीज़ मैंने ऐसी सुनी है कि जिसमें बाकायदा आप खुश रहें, आप इंजॉय करें, आप दूसरे के साथ खेलें कूदें, तो आपकी सारी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, कभी कभी आप ऐसा भी होता है कि दुनिया हो जाती है लोगों से, आप दूर हो जाते हो, कोई बात किसी थर्ड पर्सन ने बोल दी है, आपके दिल में आ जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है आपको उसका रवैया पसंद नहीं आता, उसको आपका रवैया पसंद नहीं आता, आपके बीच में दूरियाँ हो जाती हैं, आप दूर हो जाते हो। तो फिर मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, इन दूरियों को भी नज़दीक लाने का, इन दूरियों को ख़त्म करने का, नज़दीकियाँ बढ़ाने का। वो ऐसे कि जब आप होली खेल रहे होते हैं, मैंने देखा पूरी सोसाइटी के लोग खेल रहे होते हैं एक साथ ही, सिटीज़ में, पूरी सिटी में चल रही होती है, तो हर इंसान एक दूसरे को कलर लगा रहा होता है, तो उसमें खेलते खेलते प्ले करते करते इंसान उस इंसान को भी लगा देता है, वो इंसान आपको भी लगा देता है। तो आपके दिल का जो मेल होता है, आपके दिल का जो भी एक भड़ास होती है, एक आपके जहन पे जो स्ट्रेस होता है उस इंसान को लेकर, या उस इंसान के जहन पे जो आपको लेकर होता है, वो बिल्कुल निकल जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आप ये सोचते हो यार बस सही है, ख़त्म हो गया, आज तो इतना बड़ा फेस्टिवल है, ख़त्म करो, जाने दो, और फिर आप लोग इंजॉय करते हो। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, हमारी यूनि में जब मेरा लास्ट ईयर था तो हम सब ने प्लान किया था होली खेलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं खेल पाई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं उस दिन नहीं जा पाई। तो मैंने ये देखा कि हमारे सर ने हमें नहीं कहा था, हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं कहा था, लेकिन हमने खुद से ही, हम इतना अट्रैक्ट होते थे, हम इतना ज़्यादा पसंद करते थे इस चीज़ को, कि हमने सोचा था कि हम गुलाल लाएंगे, डिफरेंट कलर्स लाएंगे, वाइट ड्रेस पहनेंगे और सारे होली खेलेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमसे पहले की जो जनरेशन थी उनका नहीं पता मुझे, लेकिन अब की जो जनरेशन हैं उनमें इंडियन फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंडियन फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमारी जनरेशन, अब की जनरेशन बनाना बहुत पसंद करती है, उसकी तरफ बड़ी राग़िब है, बड़ी माइल है, और उन्हें बहुत खुशी होती है, चाहे वो दिवाली हो जाए, चाहे वो रक्षाबंधन हो जाए, चाहे वो होली हो जाए। जैसे मेरे जज्बात हैं, ऐसे ही हर किसी के जज्बात हैं पाकिस्तान में, कि हम भी सेलिब्रेट करें, हम भी देखें, हम भी इंजॉय करें, कलर्स के साथ खेलें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ी देर के लिए अगर साइड भी रख लें तो इसके मैं कहता हूँ बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार बेनिफिट्स हैं जो हमने बयान किए। मज़हब को बिल्कुल ही, मज़हब अपनी जगह पे, लेकिन खुशियाँ और मोहब्बतें, कलर्स अपनी जगह पे। एक बहुत ही कलरफुल खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।